So hello everyone, this is lecture number 7 and we are discussing today polar and non-polar compounds. At the same time, we are discussing the second aspect, that is a dipole moment application. So for concern, what are polar compounds? So when we say a polar compound, तो polar compound क्या होता है? सिंपल आपको पता ही होगा कि एक ऐसा कंपाउंड जिसमें चार्ज सेपरेशन हो, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें हमारे पास क्या हो, चार्ज सेपरेशन हो, ठीक है। नंबर वन, देयर इज charge separation. Number 2 point, there is difference of electro negativities of two different atoms, and due to this difference in negativities of atoms there is a charge separation. And one more thing, if it is a covalent bond, the shared pair of electron, the shared pair of electron that is taken by one atom, shared pair of electron is taken or displaced to one of the atom out of two atoms. I mean to say the electron is displaced more towards one as compared to another. Suppose you have a A and B atom in a molecule, and we can say if A takes electron, it will become A gives electron to B, or B take electron, it becomes negative charge and A become positive charge. So such a molecule where there is a charge separation of positive negative charge is called, we can say, polar compound. First of all, this is our, now these positive and negative poles are developed, and this type of bond is called polar bond. For example, we have a water molecule. This is water molecule. इस वाटर मॉलिक्यूल में हमारे पास H क्या बेटा, तो H पॉजिटिव चार्ज है, ये H क्या बेटा, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। और वहीं पे बात करें ऑक्सीजन की, जिसके पास दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं और जिसने दो बॉन्ड बनाए अभी, इसका जो चार्ज आएगा बेटा यहाँ पे, दिस इज बेसिकली -2 नेगेटिव चार्ज. Similarly, talk of ammonia, which is bonded with 3 bonds, and there's a presence of one lone electron. So each contributing hydrogen is carrying +1 charge. This is also carrying +1 charge. This is also carrying +1 charge, and there is at the nitrogen, which is having negative charge, is carrying -3 charge. Understand? So this charge that we're showing here is represented by the partial charge, which means that the molecule is polar and molecule behave like a polar molecule. Understand? So this is polar molecule. Now what is non-polar molecule? A non-polar molecule or non-polar bond or non-polar compound is a compound where there is no charge separation. What is? There is no charge separation between the two atoms. One is this point. Another point is that if there is no charge separation, that means electron pairs are not, that means we can say shared electron pairs are not displaced
displaced towards any one atom। मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, जिनसे बॉन्ड बन रहा है, वो इक्वली दोनों एटम के अप्रोच में है। ये हो गया इसका मतलब यहाँ पे कोई पोल्स नहीं बनेंगे। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे जो एटम होते हैं वो सेम टाइप के होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पे दूसरी बात क्या है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो हमारे पास उसका जो डिफरेंस है दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी है। एक और चीज़, कुछ केसेस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 नहीं होती, वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे हमारे पास सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं ना। अगर कोई सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, इफ देयर इज़ वन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, लाइक हमारे पास जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस पॉसिबल होता है, जैसे हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड है, जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं। अब इनके पीछे नॉन पोलरिटी की बात क्या है, क्योंकि इनका जो डाइपोल है ना बेटा, वो कैंसिल कर रहा है। डाइपोल हम दिखाएंगे आगे कैसे कैंसिल कर रहा है। तो यहाँ पे याद रखना CCl4 कैसे हमारे पास डिफरेंस होगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफरेंस की बात करें, जहाँ पे डिफरेंस 0 होना चाहिए, वो क्या है, जैसे आपका H2 मॉलिक्यूल है, जैसे आपका Cl2 मॉलिक्यूल है, जैसे आपका बाय द वे आपका वी कैन से O3 मॉलिक्यूल है। ये सारे हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने जैसे कहा कि भी इलेक्ट्रॉन पेयर और डॉट डिस्प्ले टू वन अनदर एटम। तो अगर मान लो यहाँ पे H के एटम है, दो कंबाइन कर रहे हैं, इनका इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वली शेयर्ड है, इनका इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वली शेयर्ड है। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, दिस इज बेसिकली एग्जैक्टली लाई एग्जैक्टली एट सेंटर, so there is no charge separation, understand, this is the one of the point। तो ये हो गई भाई हमारे पास। और सबसे बड़ी बात, अगर यहाँ पे सिमेट्रिकल है तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन क्लोड बनेगा नहीं, ऐसा कि पॉजिटिव नेगेटिव होगा नहीं, बस ये कंपाउंड के एग्जांपल थे, पोलर नॉन पोलर। अब पता है डाइपोलमेंट पे, और डाइपोलमेंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले बेटा अगर डाइपोलमेंट की बात करें, तो डाइपोलमेंट है क्या हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डाइपोल मोमेंट। इसको नोट करते हैं सिंबल म्यू से। और ये होता है क्या, आपको कोई पूछे तो इट इज इक्वल टू, वी कैन से द प्रोडक्ट ऑफ, it is equal to the product of magnitude of charges, जो भी चार्ज है, चाहे पॉजिटिव चार्ज चाहे नेगेटिव चार्ज है, एंड डिस्टेंस between centers of positive and negative charges। अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हमारे पास मान के चलो अगर Q है, और हमारे पास डिस्टेंस अगर उनके बीच में जो D है, तो मतलब हमारे पास जो म्यू होगा, डाइपोल मोमेंट होगा, दैट इज इक्वल टू Q इंटू D। ये पहला क्वेश्चन याद रखना आपको फर्स्ट ऑफ ऑल। अब यहाँ पे बात करेंगे इसको हम, जैसे हमने कहा डाइपोल मोमेंट म्यू से नोट करते हैं। म्यू क्या हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q इंटू D। तो कहने का मतलब हमारे पास अगर दो चार्जेस हैं, एक चार्ज हमारे पास आपका Q पॉजिटिव, इसका मैग्नीट्यूड है, दूसरे का चार्ज हमारे पास यहाँ पे एटम है, उसका चार्ज हमारे पास Q नेगेटिव है। इनके बीच का जो डिफरेंस है हमारे पास, वो डिस्टेंस जो क्या है उनके सेंटर से, वो हमारे पास D है। तो आपका यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या रहेगा, वो रहेगा हमारे पास आपका Q इंटू D। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर। अब Q यहाँ पे मैंने चार्ज बताया, तो अगर मैं बात करूँ Q की, Q बेटा Q यहाँ पे होगा, इसका अप्रॉक्सीमेटली ऑर्डर क्या होगा, 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। पहली बात क्लियर है यहाँ पे। और डिस्टेंस जो D हमारे पास, उसका जो ऑर्डर होगा हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 10⁸ सेंटीमीटर, मतलब आपका
-8 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू आपका नियर अबाउट 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस रहेगा। ये ऑर्डर रहता है हमारे पास, ठीक है। इंटर न्यूक्लियर एटॉम का डिस्टेंस क्या आता है, 10⁻⁸ ऑर्डर का, और चार्ज क्या रहता है उनका 10⁻10 सेंटीमीटर इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। तो मतलब इस हिसाब से अगर मैं म्यू निकालूं तो बेटा बताओ म्यू क्या होगा, म्यू होगा 10⁻⁻10, ये होगा इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट में मल्टीप्लाई बाई हमारे पास 10⁻⁸, ये होगा हमारे पास सेंटीमीटर में, ये बनेगा हमारे पास 10⁻⁻18, बेसिस आर सेम और मस्ट बी एडेड। ओके, यूनिट क्या आएगा, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट और साथ में सेंटीमीटर। जब भी हम इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट लिया या फिर सेंटीमीटर लिया, ये बनेगा डिबाई, दैट इज 1 डिबाई को नोट करेंगे हम डी से, इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻18 इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट सेंटीमीटर। अभी तक क्लियर है यहाँ पे भी। तो ये भी आपको एग्जाम में याद रखना कि एक डिबाई कितना होता है। तो एक डिबाई अगर इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट सेंटीमीटर में बात करें तो इट इज इक्वल टू 10⁻⁻18, और वहीं पे अगर म्यू की बात करें तो म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, और क्यू का ऑर्डर कितना लिया बेटा 10⁻10, डिस्टेंस कितना लिया 10⁻8, दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ऑर्डर का लिया। तो हमारे पास 1 जो आपका डिबाई था दैट इज इक्वल टू क्या बना हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 10⁻18 इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट सेंटीमीटर। अगर एसआई यूनिट की बात करें तो क्या होना चाहिए इन एसआई यूनिट, ये ऊपर वाला सीजीएस यूनिट में है, ये वाला आप किस में बेटा सीजीएस यूनिट में है ना। तो एसआई यूनिट में क्या होना चाहिए हमारे पास, देखो क्या होता है कि 1 इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट किसके बराबर आता है, तो ये आता है हमारे पास 1.6 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज, जो एक मोल इलेक्ट्रॉन पे होता है, उसको डिवाइड करें किससे, हमारे पास 1.8 × 10⁻⁻10, ठीक है, इसके बराबर आता है। अगर हम डिवाइड करें ये बनेगा आपका 3.3 एंड नियरली 4 × 10⁻⁻10 कूलम्ब्स के बराबर आएगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। भी इलेक्ट्रोस्टैट की बात करें, वैसे हम बात करते हैं सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना मीटर में, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर। तो अगर मैं इसको डिबाई को कन्वर्ट करूं, किस में कन्वर्ट करूं, तो ये रहेगा भी हमारे पास आपका एसआई यूनिट में 10⁻8 आया, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट और सेंटीमीटर की जगह पर रिप्लेस करूँगा मैं इलेक्ट्रोस्टैट की वैल्यू। तो क्या होती है बेटा इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट की वैल्यू, वो हमने बताई, वो होती है 3.34 × 10⁻⁻10। अच्छा भी, और सेंटीमीटर की जगह पे मीटर चेंज करो तो ये बनेगा 10⁻²। ये टोटल बनेगा हमारे पास आपका, वी कैन से, ये हो गया आपका कूलम्ब में, ये हो गया आपका मीटर में, ये बनेगा कूलम्ब मीटर। दिस मीन्स दिस इज इक्वल टू 3.34 × 10⁻18 and 1028 and -2 is equal to -30 coulomb meter. This is equal to 1 divided in your SI unit. दो चीज़ें यहाँ पे क्लियर होगी। आप ये याद रखना कि एक इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट चार्ज क्या होना चाहिए हमारे पास, 3.48 × 10⁻10। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। डन यहाँ पे। अब नेक्स्ट हमारे पास आपका जो दिया गया यहाँ पे, तो हमें ये बता दिया। अब डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी बेटा, एक बात याद रखो, डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी है और इसकी डायरेक्शन भी है। और अब जब बात करते हैं इसके मैग्नीट्यूड की और डायरेक्शन की, तो मतलब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो भाई अगर ये डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करना, हमने इसको रिप्रेजेंट करते हैं इससे, एक एरो हेड से, क्रॉस हेड से, मतलब क्रॉस टेल से ये रिप्रेजेंट करते हैं। जो क्रॉस टेल है, जैसे मान लो हमारे पास HCl का एटम है, इस केस में क्या होगा, इस केस में Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज, उसकी तरफ एरो हेड लगाएंगे और क्रॉस टेल लगाएंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। ये डाइपोल मोमेंट का एक रिप्रेजेंटेशन है। डन यहाँ पे भी। अब डाइपोल मोमेंट
हमारे पास किसका ज़ीरो होगा और किसका नॉन ज़ीरो होगा, ये सबसे बड़ी बात करते हैं। सो व्हेन डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू ज़ीरो, नंबर 1 पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, पहले वो मॉलिक्यूल जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हैं, और इन मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। और इन मॉलिक्यूल्स में एक चीज़ और याद रखना कि यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है दैट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बट स्टिल दे आर कंसिडर टू बी नॉन पोलर। तो हमने पहले कहा था इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस से पोलरिटी बढ़ती, बट यहाँ पे अगर उसके साथ में कंपाउंड सिमेट्रिकल है तो आपका नॉन पोलर ही होगा। एक ही चीज़ याद रखना यहाँ पे। अब इसमें एग्जांपल आती है हमारे पास, जैसे वे आर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड में ऐसा क्या है, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को देखोगे ना, सी डबल बॉन्ड ओ स्ट्रक्चर इस तरह है। तो इसका डाइपोल कैसे बनेगा बेटा, तो इसका डाइपोल बनेगा यहाँ पे कार्बन पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज तरफ इस तरह दिखाते हैं और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे इस तरह डाइपोल बनेगा। दूसरा को मैं नीचे डाइपोल दिखाता हूँ, कार्बन पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज। क्या करा यहाँ पे, डाइपोल कैंसिल करेगा हमारे पास। तो इस केस में एक बॉन्ड का डाइपोल दूसरे बॉन्ड को कैंसिल कर रहा है, ठीक है। डाइपोल इज इक्वल एंड डाइपोल इन सच केसेस इज cancelling each other, so such molecule is called non-polar molecule, non-polar molecule, and they're symmetrical molecule. For example, one more example is CCl4, carbon tetrachloride. अब इस केस में भी क्या, कार्बन बीच में सेंटर में हमारे पास वो 4 क्लोरीन है, एक क्लोरीन यहाँ पे दिखा देता हूँ, दूसरा क्लोरीन यहाँ पे दिखा देता हूँ, तीसरा क्लोरीन मेरे पास ऊपर दिखाते हैं, चौथा क्लोरीन नीचे दिखा देते हैं। अगर यहाँ पे भी हम डाइपोल ड्रा करें तो क्या करते हैं, इसका डाइपोल ड्रॉ करें, वही पॉजिटिव से टुवर्ड्स नेगेटिव एटम यहाँ पे जाते हैं, ये डाइपोल कैंसिल करा इस डाइपोल को। वैसे ही हमारे पास अगर हम बात करें तो अपवर्ड साइड का डाइपोल जो है कैंसिल करा डाउनवर्ड साइड को, नेट डाइपोल क्या आएगा, इन जीरो आएगा हमारे पास। CCl4 में भी डाइपोल क्या है, जीरो आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट मॉलिक्यूल आएगा बेटा BF3, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। ये भी मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, इसमें कोई भी आपका लोन पेयर नहीं, सारे के सारे बॉन्ड्स ही बनते हैं। और इस मॉलिक्यूल का डाइपोल निकालें, यहाँ पे भी बोरान पॉजिटिव चार्ज है और फ्लोरीन नेगेटिव चार्ज है। तो ये डाइपोल रिजल्टेंट डाइपोल कैसा दिखेगा, पहले देखो ये डाइपोल इधर को कैंसिल कर रहा है, ये बाइपोल इधर को मतलब कि अलाइन कर रहा है, ये डाइपोल इधर को अलाइन कर रहा है। बट इनका रिजल्टेंट डाइपोल अगर निकालना चाहें हम तो व्हाट इज द रिजल्टेंट डाइपोल, दिस इज द रिजल्टेंट डाइपोल। सभी को ये क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है, ठीक है। तो दे आर कैंसलिंग आउट, तो इसका भी डाइपोल क्या आएगा, जीरो आएगा। ऐसे मॉलिक्यूल हमारे पास जो सिमेट्रिकल हैं, जिनके पास कोई लोन पेयर नहीं है, बॉन्ड पेयर ही है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस यहाँ पे हो, वो स्टिल नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहा जाता है। अब आते हैं उन मॉलिक्यूल पे जिनका डाइपोल परमानेंट होता है, एग्जिस्ट करता है। इनके अलावा बेटा और कौन से हैं, एक तो ये केस बताया। दूसरा केस याद रखना यहाँ पे, जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या हो, इक्वल टू जीरो। जैसे हमारे पास मॉलिक्यूल होमोटॉमिक डाइटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, H2O2N2 है ना। इसी तरह से ट्राइटॉमिक भी हो सकते हैं, होमोटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राइटॉमिक, टेट्राटॉमिक P4, इसी तरह से ऑक्टाटॉमिक S8। ये सारे मॉलिक्यूल के हैं, इनका भी डाइपोल जीरो है। अब इनका डाइपोल जीरो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो भी जीरो आता है। डन यहाँ पे बेटा। तो ये सारे के सारे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, दैट मीन्स ऑल दीज मॉलिक्यूल आर सेड टू बी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, इनका डाइपोल जीरो है। अब नेक्स्ट आता हूँ मैं उन मॉलिक्यूल पे जो उनका डाइपोल एग्जिस्ट करता है, जिनके लिए म्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, और ये कंपाउंड हमारे पास पोलर हैं। ये कंपाउंड कैसे होंगे, इन कंपाउंड की बात याद रखना, खास करके यहाँ पे भी आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस भी क्या होना चाहिए, वो भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें से सबसे पहले आते हैं बेटा हमारे पास एक टाइप के मॉलिक्यूल, जिसे इन खास मॉलिक्यूल में आता है आपका हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आते हैं। डन ये।
अब मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे पास पहले हेलोजन की बात करते हैं, HF, उसके बाद HCl, उसके बाद HBr, और सबसे डाइपोल कम है HI का। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे डाइपोल की, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगी उतना ही डाइपोल बढ़ेगा। एक बात ही क्लियर आपको। इस केस में HF का डाइपोल ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू बाकी के केस में। तो याद रखना इस केस में क्या बताया मैंने, ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ग्रेटर इज डाइपोल मोमेंट। HF का डाइपोल अप्रोक्सीमेटली आता है बेटा हमारे पास 1.78 dpi, वेर एज कंपेयर टू HI इसका डाइपोल आता है 0.38 dpi। तो एक डिफरेंस आपको मिलता है। अब इसी तरह से मान लो हमारे पास मॉलिक्यूल है, नंबर 2 पॉइंट बताना चाहता हूँ, पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं। अब ये भी कौन सा पॉलीटॉमिक है, और साथ में बेटा ये हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मैंने आपको पहले कहा हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। तो होमो मत लेना यहाँ पे, हेट्रो मतलब 2 डिफरेंट एटम होना चाहिए। तो वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक मॉलिक्यूल, हमारे पास वाटर है। वाटर के पास बेटा 2 लोन पेयर होते हैं। जब भी लोन पेयर आए तो ज्योमेट्री आपकी सिमेट्रिकल नहीं होती, एसिमेट्रिक हो जाती है, और ये वाटर का मॉलिक्यूल है। अब इसमें अगर डाइपोल दिखाना चाहें तो H पॉजिटिव एटम है और टुवर्ड्स नेगेटिव की तरफ जाएंगे, ठीक है। और हमारे पास रिजल्टेंट डाइपोल यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और इसका रिजल्टेंट डाइपोल जो आएगा म्यू, दैट इज इक्वल टू 1.84 dpi। डन। लाइकवाइज वी हैव अ केस ऑफ एमोनिया। एमोनिया भी एक आपका हेट्रोटॉमिक पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल है, जिसमें भी हमारे पास अगेन लोन पेयर है, और लोन पेयर होने की वजह से इसका भी डाइपोल एग्जिस्ट करेगा, और वो भी कहीं ना कहीं कैंसल नहीं करेगा, ठीक है। और रिजल्टेंट डाइपोल 0 नहीं आएगा। तो म्यू इज इक्वल टू कितना आना चाहिए हमारे पास, 1.49 डी आता है। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे NF3 की। अब आपको NF3 दिख रहा है बिल्कुल NH3 के हिसाब से। यहाँ पे भी लोन पेयर दिखा सकते हो। लोन पेयर का डाइवर्ट करेगा, अपवर्ड ही करेगा। हमारे पास ये फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है और फ्लोरीन है। अब आपको अच्छे से पता है कि अगर डाइपोल की बात करें तो लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन का डाइपोल हम दिखाएंगे अपवर्ड्स टुवर्ड्स हायर लोब्स, और नाइट्रोजन फ्लोरीन में आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है बेटा, वो है फ्लोरीन। तो अभी हम देखें एमोनिया और फ्लोरीन में, तो अगर मैं आपसे पूछूं किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है, ऑब्वियसली जो हमारे पास आपका NF3 है, उस केस में NF3 में डाइपोल मोमेंट कितना आएगा, तो इसका डाइपोल मोमेंट बेटा आता है हमारे पास म्यू इज इक्वल टू 1.46 dpi। तो रिमेंबर डाइपोल मोमेंट ऑफ ammonia is always greater than dipole moment of NF3. No doubt that fluorine is more electronegative, but here the dipole is cancelling the resultant dipole moment of lone pair electrons. तो हमारे पास यहाँ पे देख सकते हो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट केस बन जाता है। तो यहाँ पे ये याद रखना कि जो हमने ऊपर केस बताया था ग्रेटर इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस और साथ में डाइपोल ज़्यादा होता है, वो कभी कभी अगर पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें तो कहीं ना कहीं उसकी डिपेंड करता है कि वो कैसे अरेंज है, उस पर भी डिपेंड करता है। ओके, तो इधर से हमें ये भी समझ आता है। और एक चीज़ यहाँ पे आप नोट करोगे, इसमें एक चीज़ नोट कर सकते, जब लोन पेयर की बात करें तो याद रखना बेटा म्यू बढ़ेगा अगर हमारे पास नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे मतलब अगर आप HF में देखो तो HF में फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप वाटर में देखो, वाटर में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं। आप एमोनिया में देखो, एमोनिया में बस 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। इसका डाइपोल मैंने बताया मैंने 1.78 dpi। ओके, वाटर का डाइपोल बताया मैंने 1.84 dpi, और एमोनिया का डाइपोल बताया मैंने 1.49 dpi। ओबियसली हमारे पास यहाँ पे देखा जाए तो लोन पेयर बढ़ेगा तो डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा। कब की बात करूँ, जब ये पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल होगा। इस तरह से हम इनको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कि आपके पास और ट्रिक हो गए, 2 ट्रिक हो गए हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास
डाइपोलमेंट का रिलेशन एक और बता रहा हूँ। ये भाई 3 पॉइंट हो गए बेटा। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगी तो डाइपोल बढ़ेगा, बट ये केस आपका डिपेंड करता है अगर जब ज्योमेट्री की बात करें। नंबर 2 पॉइंट हमारे पास बेटा कि अगर लोन पेयर बने तो डाइपोलमेंट बढ़ता है। तीसरा केस जो आपको याद रखना है कि अगर डाइपोलमेंट की बात करें, डाइपोलमेंट अगर हमारे पास बढ़ेगा बट एंगल होगा डिक्रीज। अब ये केस कैसा है, एंगल होगा डिक्रीज, मतलब हमारे पास 3 कंपाउंड हैं। एक हमारे पास मैंने बताया आपका 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, ये रहा बेटा 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। एक रहा आपका 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। एक रहा आपका 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, मतलब आर्थो पहला वाला, दूसरा वाला मेटा बताया मैंने, तीसरा वाला पैरा बताया मैंने। अभी जो आर्थो का केस है, आर्थो केस है ये मेटा, मेटा मतलब 1,3 पे जब ग्रुप्स हों, पैरा मतलब जो 1,4 पे ग्रुप्स हों। ओके, तो इस केस में अगर मैं डाइपोलमेंट की बात करूं तो डाइपोलमेंट ऐसे दिखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ये हमारे पास क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऐसे दिखाते हैं डाइपोल, और इसका भी डाइपोल ऐसे दिखाते हैं। तो यहाँ पे भी आपके 2 मतलब ऐड होंगे, यहाँ पे भी आपके 2 इस तरह से बन रहे हैं हमारे पास डाइपोल। अब क्या करें वो आगे की बात है। यहाँ पे भी आपके 2 डाइपोल बने, बट ये ऑपोजिट कर रहे हैं एंगल्स। अब इस केस में अगर एंगल देखा जाए तो एंगल यहाँ पे बन रहा है बेटा कितना, 180 डिग्री का। कैसे बन रहा है आप देख सकते हो, यहाँ पे एंगल बन रहा है 180 डिग्री का। यहाँ पे बेटा इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है कितना, मेटा में 120 डिग्री का, और यहाँ पे एंगल बन रहा है कितना बेटा हमारे पास 60 डिग्री का। अब जहाँ पे एंगल कम वहाँ पे डाइपोलमेंट ज़्यादा, जहाँ पे एंगल कम वहाँ पे डाइपोलमेंट ज़्यादा। तो इस तरह से आर्थो का डाइपोलमेंट ज़्यादा आएगा। ठीक है, किससे ज़्यादा आएगा बेटा, मेटा से। इधर की डाइपोल की बात करें, दिस इज इक्वल टू 2.54 डी पाई। इधर की डाइपोल की बात करें, यहाँ पे बनता है हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 1.48 डी पाई, और वहीं पे पैरा की बात करें ऑपोजिट में कैंसिल करा, हमारे पास डाइपोल आएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना अगर हमारे पास आपका म्यू ज़्यादा है तो एंगल कम रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका केस। और पैरा में 0 क्यों आया, क्यों कैंसिल कर रहा है हमारे पास। डन, ये बेटा आपको भी क्लियर हो गया। अब हमें यह से समझ आता है कि डाइपोलमेंट होता क्या है, डाइपोलमेंट कैसे दिखते हैं मॉलिक्यूल्स के हिसाब से। तो कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। नंबर 1 पॉइंट कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएं तो डाइपोलमेंट बढ़ेगा। उसके बाद अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ जाए डाइपोलमेंट बढ़ेगा, बट ये डिपेंड करता है ज्योमेट्री पे भी। उसके बाद थीटा का जो है यूनिवर्सल कि थीटा अगर बढ़ता है तो डाइपोलमेंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका डाइपोल हो जाता है, बट डाइपोल के एप्लीकेशंस क्या हैं, व्हाट आर एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल। अगर मैं डाइपोल की एप्लीकेशन की बात करूं तो यू विल बी एस्टोनिश्ड टू नो दैट बहुत सारी इंफॉर्मेशन बताता है ये। अब सबसे पहले डाइपोल क्या बताता है, अभी डाइपोलमेंट क्या बताता है, ये बताता है हमारे पास ये क्या क्या इसके एप्लीकेशन है। नंबर 1, इट टेल्स अस अबाउट, वी कैन से डिटरमाइन करता है पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड पोलर है या नहीं है। एक बात ये बता दी आपको, चलो अभी मान लिया तो मैं देख लिया अभी पोलर बॉन्ड है या नहीं है। नंबर 2 ये क्या बताएगा बेटा, ये बताएगा डिटरमाइन करेगा सिमेट्री, सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, या फिर शेप हो सकते हो। अगर डाइपोलमेंट में हमारे पास 0 है तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, नहीं है तो अनसिमेट्रिकल है। थर्ड बेटा ये और क्या बताता है, ये करता है डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश मतलब डिफ्रेंशिएट करता है। किस किस को करता है डिस्टिंग्विश बेटा, डिस्टिंग्विश करता है एक तो भाई याद रखना सिस एंड ट्रांस कंपाउंड्स को, दूसरा याद रखना
पोजिशनल आइसोमर्स को, जिसमें आर्थो आएगा, जिसमें पैरा आएगा, जिसमें मैट आएगा, अभी मैंने बताया। ठीक है, अब मैं थोड़ा सिस ट्रांस की बात करता हूँ। मेरे पास एक कंपाउंड है, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लोरीन लगाया बेटा इस तरफ, यहाँ पे इस तरफ क्लोरीन लगाया। ठीक है, और ये मेरे पास HH लगाया मैंने। अब मुझे अगर इसका केस बताओ कि कंपाउंड सिस है। सिस मतलब जब दोनों ग्रुप एक तरफ हों, सेम साइड्स को सिस बोलते हैं। तो अगर मैं इस सिस कंपाउंड को देखूं तो इसका डाइपोल मोमेंट अगर बनाने बैठूं मैं, तो ऐसे कुछ बनेगा। यू सी हियर, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और HC बॉन्ड में आपका कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव को माना जाएगा। तो अब मुझे बताओ, क्या यहाँ पे डाइपोल कैंसिल कर रहा है? तो ऑफकोर्स डाइपोल मोमेंट कैंसिल नहीं कर रहा, वो एक दूसरे का अलाइन कर रहा, डाइपोल इज नॉट इक्वल टू 0। तो सिस में डाइपोल मोमेंट 0 होगा, 0 नहीं होगा, सॉरी। वहीं पे बात करता हूँ ट्रांस की, बात करते हैं, इसी का ट्रांस बनाते हैं। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिखाते हैं, क्लोरीन को अपोजिट में दिखाएंगे, एक क्लोरीन इधर गया, एक क्लोरीन इधर गया। वैसे भी बात करूँ हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन एक इधर गया, एक हाइड्रोजन इधर। अब इसका डाइपोल अगर क्या दिखाएं तो कैसे दिखेगा, देखो, तो इसका डाइपोल इधर को दिखेगा, इसको कैंसिल करने वाला ये वाला बंदा है। और वैसे ही हमारे पास दूसरा जो डाइपोल दिखाने जा रहा हूँ यहाँ पे आपका H और C के बीच में, तो इसमें ऐसे बनेगा डाइपोल, और इसको कैंसिल करने वाला ये वाला बंदा है। तो मतलब दोनों केसेस में कैंसिल करा, तो नेट डाइपोल इसको ट्रांस का आएगा। ट्रांस में जो दोनों ग्रुप एक दूसरे के डायगोनल पे होते हैं, इसमें नेट डाइपोल यहाँ पे 0 आ रहा है। तो मतलब कहने का मतलब है कि जो म्यू की बात करें, म्यू सिस का हमेशा ज़्यादा होगा, किससे? ट्रांस से, ट्रांस से। डन ये बेटा। तो ये हमारे पास केस बनता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट केस बनता है। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे सिमेट्री की वजह से डाइपोल 0 हो रहा है, किसको हो रहा है? वो हमारे पास आपका ट्रांस का हो रहा है। वैसे आर्थो पैरा मैंने बता दिया कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की, तो सबसे बड़ा आर्थो का, क्योंकि एंगल कम, उसके बाद मेटा का, उसके बाद पैरा का। तो यहाँ पे बताया मैंने कि डाइपोल मोमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, द एंगल बिटवीन देम। अब एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये कि एक ये भी बताता है, ये फोर्थ एप्लीकेशन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बताता है परसेंटेज आयनिक करेक्टर, ये परसेंट आयनिक करेक्टर बताता है। और इसका जनाब एक फॉर्मूला होता है, अगर कोई पूछे व्हाट इज परसेंटेज आयनिक करेक्टर, तो उसका फॉर्मूला होता है म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन डाइपोल मोमेंट या म्यू आयनिक मल्टीप्लाई कितना 100। ये फॉर्मूला आपका रहता है डाइपोल मोमेंट को निकालने के लिए, न्यूमेरिकली निकालने के लिए। अब इस केस को हम कैसे सॉल्व करते हैं? आई एम गिविंग यू एग्जांपल, एक एग्जांपल को और करते हैं। यहाँ पर एग्जांपल मैं आगे देता हूँ। तो एग्जांपल के क्वेश्चन लेते हैं, न्यूमेरिकल लेते हैं, फिर समझाते हैं। क्वेश्चन हमारे पास बेटा, क्वेश्चन कहता है कि भी फॉर HCl, जिसको मैंने एज्यूम किया कि ये 100% आयनिक है, लेट्स से ना, तो नहीं, इसको भी मैं थोड़ा लिखता हूँ, दोबारा लिखता हूँ। तो कहता हूँ भाई फॉर HCl, मुझे एज्यूम करना पड़ेगा 100%, बट वो सोल्यूशन में करूँगा। तो फॉर HCl म्यू ऑब्जर्व्ड गिवन है कितना बेटा? 1.03 डी बाई, एंड HCl की बॉन्ड लेंथ बेटा दी उन्होंने 1.275 एंगस्ट्रॉम। आपको निकालना है, यू टू फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले एज्यूम करते हैं कि HCl क्या है? HCl 100% आयनिक है। अगर 100% आयनिक है बेटा,
तो ईच मॉलिक्यूल कैरी अ चार्ज इक्वल टू 1 यूनिट। तो इस केस में जो इसका ईच मॉलिक्यूल कैरी चार्ज इक्वल टू 1 यूनिट, और वो कितना आएगा, वो आएगा 4.8 इंटू 10 रेज्ड पर माइनस 10 इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। ये लो क्लियर हो गया। हमारे पास यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो पहले हम म्यू आयनिक निकालते हैं। तो बेटा म्यू आयनिक क्या आएगा, क्यू इंटू डी। चार्ज ज्यूम कितना किया, 4.8 इंटू 10 रेज पर माइनस 19, ये सॉरी 10, और डी हमारे पास किया इन्होंने कितना 1.275 मतलब 10 रेज पर माइनस 8 सेंटीमीटर, और ये किसमें, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट में। दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आता आपका 6.12 इंटू 10 रेज्ड पर माइनस 18 इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट सेंटीमीटर। एंड हमें पता है कि भाई ये बनेगा 6.12 डी बाई वाई, बिकॉज 1 डी बाई इज इक्वल टू 10 रेज्ड पर माइनस 18 इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट्स सेंटीमीटर। डन। तो ये म्यू आयनिक कितना है, यह है हमारे पास 6.12। अब हम निकालते हैं यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से परसेंटेज आयनिक करैक्टर। तो परसेंटेज आयनिक करैक्टर क्या रहेगा बेटा, हमारे पास ये रहेगा हमारे पास आपका म्यू ऑब्जर्व्ड कितना है 1.03 डी बाई, और म्यू आयनिक 6.12 डी बाई मल्टीप्लाई बाई 100। जब इनको हम डिवाइड करते हैं ये बनता है हमारे पास 16.83%, ये बनता है 16.83%। ये हो गया आपका परसेंट आयनिक करैक्टर। ठीक है, तो मतलब अब ये 50% से ऊपर होता कंपाउंड हमारे पास होता आयनिक, बट 50 से नीचे होता HCl हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड है बेटा, तब इसका करैक्टर कम आ रहा है। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, देखो केस है हमारे पास यहाँ पे, तो अगर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि भी अगर पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल है इसका रिजल्टेंट डाइपोल क्या आएगा, तो यहाँ पे लिखना रिजल्टेंट डाइपोल, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 कॉस थीटा। ठीक है, अगर हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो म्यू रिजल्टेंट मैक्सिमम आएगा। मैक्सिमम कितना आएगा, मैक्सिमम मतलब μ1 प्लस μ2 के बराबर आएगा। और अगर थीटा हमारे पास 180 है तो इस केस में म्यू रिजल्टेंट हमारे पास मिनिमम आएगा। अब मिनिमम कितना बेटा, μ1 माइनस μ2। अभी जो केस बताया मैंने आपको रिजल्टेंट निकालने का, दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट डाइपोल निकालने का फॉर्मूला। रिजल्टेंट डाइपोल निकालने का फॉर्मूला कब निकालेंगे, जब हमारे पास आपका पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल होगा और थीटा के एंगल की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा की। तो यू नो दैट कॉस थीटा 90 पे कितना होना चाहिए और कॉस थीटा 180 पे कितना होना चाहिए, तो आप वो मुझे बता दो इस यूट्यूब के एंड पे कि क्या है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर डाइपोलमेंट एंड वी कैन से पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड एंड नाइस डे।